Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's number one educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, today I will explain conductance of electrolytic solution. Conductance of electrolytic solution give us method to calculate degree of dissociation and equilibrium constant, which we have learned earlier in class 11 under the topic chemical equilibrium. So with the importance of this topic, we will cover main points and other points too of the topic conductance of electrolytic solution, which is from the chapter electrochemistry. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने 5 स्टार टॉप पॉइंट डिस्कस किया था, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फार्मूला, इस टॉपिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। इसके बेस पे दूसरे सारे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से कौन कौन से फार्मूला हमने डिराइव किया था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फार्मूला इससे डिराइव होगा वो देख लीजिए। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेसिस्टिविटी लगा दीजिए, आर इक्वल रो एल बाई ए। इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो 1/r इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 1/r लिख दीजिए। मतलब ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, रो ए अपॉन एल, ये हो गया कंडक्टेंस। तो एक फार्मूला ये हमने सेलेक्ट किया, इससे हमें दो फार्मूला और मिल जाते हैं। अब रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो R इक्वल रेसिस्टिविटी का उल्टा कर दीजिए, तो मतलब 1/k L/A। तो ये हो गया रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। ये तो इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। एक फार्मूले से बाकी 3 फार्मूला हमने ड्राइव किया। अब आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है वो कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का कंडक्टिविटी एक्यूरेसी के साथ नोन है, करेक्ट नोन है, सही मालूम है अपने को। वो यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं। 0.1 मोलर HCl की कंडक्टिविटी, 3.91 सीमन पर मीटर। गोल्ड की कंडक्टिविटी 4.5 इंटू 10³ सीमन पर मीटर। अगर हाई कंडक्टिविटी में जाएंगे तो सिल्वर की कंडक्टिविटी 6.2 इंटू 10³ सीमन पर मीटर।
बहुत इंपॉर्टेंट है KCl सोल्यूशन। KCl का एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम है तो 0.01 मोलर KCl का कंडक्टिविटी 0.14 सीमन पर मीटर। ये तो कुछ कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने होंगे। It can be seen from table that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on nature of material. It also depends on the temperature and pressure at which the measurements are made. Materials are classified into conductors, insulators, and semiconductors depending on magnitude of their conductivity. Metals and their alloys have very large conductivity and are known as conductors. Certain nonmetals like carbon black, graphite, and some organic polymers are also electronically conducting. पॉलीमर्स में ग्रेफाइट जैसे पाई बॉन्ड होते हैं जो कि पॉलीमर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Substances like glass, ceramics, etc. have very low conductivity are known as insulators. Substances like silicon, doped silicon, gallium arsenide having conductivity between conductors and insulators are called semiconductors and are important electronic material. Certain materials called superconductors by definition have zero resistivity or infinite conductivity. Earlier, only metals and their alloys at very low temperatures 0 to 15 Kelvin were known to behave as superconductors. But nowadays, a number of ceramic materials and mixed oxides are also known to show superconductivity at temperatures as high as 150 Kelvin. Electrical conductance through metals is called metallic or electronic conductance and is due to movement of electrons. डिस्कस किया हमने पहले फ्लो चार्ट बना के। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, टेम्परेचर इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे अलग से डिस्कस करना होगा। कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीमर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंडक्टिविटी ऑफ organic polymers is due to alternate pi bond as in graphite. दूसरा important point, superconductivity. Superconductivity in metals resistance is due to vibration of kernel at 0 Kelvin. Kernels cannot vibrate due to 0 Ke. So resistance and hence resistivity is 0. So
conductance is infinite. Conductance is infinite. अभी एक पॉइंट ये देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस conductivity of electrolytic ionic solutions increases with increase in temperature. तो जैसे जैसे आयनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का देखिए, टेम्परेचर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. पॉइंट मस्ट बी क्लियर, ये समझ में आना चाहिए अपने को यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है. टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी दो तरह का होता है. कंडक्टिविटी कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1 upon टेम्परेचर. रीज़न क्या इसका है? वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल increases with increase in temperature. और दूसरे टाइप का कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक को आयनिक भी कहते हैं. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. रीज़न क्या है? रीज़न ये है, T इंक्रीजेस K ऑफ आयंस. तो पॉइंट क्लियर है. T इंक्रीज होगा तो K इंक्रीज होगा, K इंक्रीज होगा तो आयंस फास्ट मूव कर सकेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी. Passage of direct current through ionic solution over a prolonged period can lead to change in temperature due to electrochemical reactions. अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लॉन्ग टाइम तक डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होंगे. इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिस्कस नहीं करनी है. इस चैप्टर में हमें आयनिक कंडक्टिविटी डिस्कस करनी है. स्टार्ट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस. जब हम आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी मेजरमेंट करेंगे तो हमें दो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा. मेजरमेंट ऑफ conductivity of ionic solution. Two problems. कौन कौन से टू प्रॉब्लम्स हैं? पहला प्रॉब्लम, सॉल्यूशन cannot be connected to Wheatstone bridge
like a metallic wire. Problem number 1. Problem number 2, concentration of electrolytic solution changes by passage of इलेक्ट्रिक करंट। ये दो प्रॉब्लम्स आएंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी मेज़र करने जाएंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन को हम वायर की तरह, मेटालिक वायर की तरह व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा प्रॉब्लम ये है, अगर ये प्रॉब्लम पहला वाला सॉल्व ही कर लिया तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा बाय पैसेज ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डीसी। अब ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is filled in कंडक्टिविटी सेल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज एसी अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं और इसको इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी सेल की। कंडक्टिविटी सेल इस शेप का भी हो सकता है और इस शेप का भी हो सकता है, और ऐसे वाले कंडक्टिविटी सेल बहुत सारे डिज़ाइंस में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कंडक्टिविटी सेल बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये पहला प्रॉब्लम था कि कैसे सॉल्यूशन को कनेक्ट करें व्हीटस्टोन ब्रिज से, वो प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत तरह के कंडक्टिविटी सेल्स आते हैं मार्केट में, वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और कनेक्ट करने के लिए वायर लिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, दूसरा एक कंडक्टिविटी सेल है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप ये जो डिस्टेंस है ये है कंडक्टिविटी सेल का एन लेंथ एल, और ये जो है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो इसको ध्यान रखना होगा। द क्वांटिटी L अपॉन A इज़ नोन एज सेल कांस्टेंट। याद रखना है, कई बार काम आएगा। सेल कांस्टेंट क्या है, L अपॉन A। इसे कांस्टेंट का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जब कोई कंटेनर लेंगे हम तो कंटेनर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट माना गया है। सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी एस्टेरिक से, भूलना मत, जी को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेजरमेंट ऑफ L एंड A इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट बट आल्सो अनरिलायबल। अगर हम इसको लेंथ और अगर हम इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेज़र करने जाएं तो बहुत सारी मिस्टेक होगी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड से यूज़ कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं, इसके लिए
सेल कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए जे एस्टेरिक इक्वल आर के, तो आर फाइंड कर लेते हैं। जिस सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू मालूम है अच्छी तरह से, के सी एल के लिए, पोटेशियम क्लोराइड के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू अच्छी तरह से मालूम है, तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के की वैल्यू पहले से ही मालूम है, तो अब जब के की वैल्यू पहले से मालूम है तो आर की वैल्यू फाइंड कर लिया तो ये वैल्यू मिल जाएगी, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। बहुत सारे KCl सॉल्यूशन का एग्जैक्ट कंडक्टिविटी का वैल्यू इस टेबल में दिया हुआ है। अब किसी भी सेल का रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जैसा डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें 4 रेसिस्टेंस लिए गए हैं, 3 वायर लिया है और एक कंडक्टिविटी सेल। ऊपर डिस्कस किया है कंडक्टिविटी सेल, तो 3 वायर लिया है, एक कंडक्टिविटी सेल लिया है। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये डिटेक्टर एक डिवाइस है जो सिग्नल बताता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब डिटेक्टर में कोई करंट नहीं आएगा, व्हेन डिटेक्टर गिव्स नो सिग्नल द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अगर यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये कोई ऑडियो डिवाइस भी हो सकता है डिटेक्टर, तो जब कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिले, मतलब कोई सिग्नल नहीं मिले, तब बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है उस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल रेसिस्टेंसेस इज इक्वल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब R2 R3 इक्वल R1 R4। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा लेते हैं, R1 मालूम होना चाहिए, R3 R4। जब 4 रेसिस्टेंस लेते हैं उसमें से एक होता है कंडक्टिविटी सेल, तो बाकी जो 3 लेते हैं तो उनका हमको रेसिस्टेंस पहले से मालूम होना चाहिए। तो अब जब प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल रेसिस्टेंस इज इक्वल, तो R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4, तो इस तरह से इसको रीअरेंज करके R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब the conductivity of solutions of different electrolytes in same solvent and given temperature differs due to charge and size of ions in which they dissociate। अगर एक ही सॉल्वेंट लेंगे तो भी इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन उस सॉल्वेंट में अलग अलग होगा, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी एक ही सॉल्वेंट में अलग रहेगी। वाटर में KCl की कंडक्टिविटी अलग रहेगी, NaCl की अलग रहेगी, LiCl की अलग रहेगी। द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और ease with which the ions move under potential gradient, it therefore becomes necessary to define physically more meaningful quantity called molar conductivity। कंडक्टिविटी का भरोसा नहीं है, कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है कंसंट्रेशन के साथ, टेम्परेचर के साथ, बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ। कंसंट्रेशन तो चेंज होगा तो भी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी भरोसे लायक नहीं है, रिलायबल नहीं है। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होती है। अब मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी of solution having 1 mole of electrolyte is known as molar conductivity।
तो इसको फार्मूला कैसे लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा एम सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी का, डिवाइड बाय इक्वल टू के अपॉन सी। अब के क्या है, कंडक्टिविटी, लेमडा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या है वो देखना पड़ता है। तो लेमडा एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन सी, वेयर सी इज इन मोल पर लीटर। ये फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी का दूसरा भी फार्मूला आएगा, लेकिन हमको ये वाला फार्मूला दिमाग में रखना है। 99% चांसेस रहते हैं कि यही वाला फार्मूला एग्ज़ाम में यूज़ करना होता है। तो दूसरा फार्मूला भी आएगा, आप उस पर ध्यान न दे के सिर्फ इस फार्मूला पे ही ध्यान देना, उसको सेकंड नंबर पे ही रखना, दूसरे फार्मूले को दूसरे नंबर पे ही रखना, नंबर 1 पे इसको रखना। अब कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती हैं, लेमडा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी सीमन पर मीटर, और कंडक्टिविटी की यूनिट्स ऐसे क्यों आएगी सीमन पर मीटर, तो आर प्रोपोर्शनल, पहले बोला था ना कि ये फार्मूला याद रखना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। आर प्रोपोर्शनल एन अपॉन ए, एल अपॉन ए, तो आर इज इक्वल टू मीटर, और अभी पहले यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रो क्या होता है, 1 अपॉन के, तो आर इक्वल्स 1 अपॉन के एल अपॉन ए, रो होता है 1 अपॉन के। अब इसको रीअरेंज करें तो मिल जाएगा के इक्वल एल अपॉन ए आर। एल हो गया मीटर, 1 अपॉन आर हो गया सीमन, आर मतलब ओम, और ए हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या बचेगा आंसर, सीमन पर मीटर, राइट। तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया सीमन पर मीटर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया मोल अपॉन पर सीएम क्यूब, नहीं यहाँ पे लेना पड़ेगा पर मीटर क्यूब, तभी तो यूनिट कैंसिल होगी। तो आंसर आ जाएगा सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करेंगे और आगे चीज़ सीखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, थैंक यू।